Okay, now you can start. Okay, thank you. Very good morning, ladies and gentlemen, and my dear friend. It gives me immense pleasure to extend to you every warm welcome on the behalf of Hutatma Rajguru Shikshan Prasarak Mandal, Sir Senapati Hambirao Mohite Law College, Rajguru Nagar, Pune. Knowledge sharing platform has clubbed us on the national level lecture series on the role of forensic psychology in criminal justice system. It is organized by our IQC department of the college with the Association of Criminal Law Justice System of SHM Law College, Rajguru Nagar, Pune. You know that we are heard about today's our guest lecture topic about the role of forensic psychology in criminal justice system. I think if we are discussing about the forensic psychology, let's start with the one saying can help to in a psychological understanding psychology mode. That is every story that is a saying by one of the that is every story I have written. I was written because I had to write it. Writing story is like breathing for me. It's my life. This is written by the great author Rai Brodai. So, so this was the saying we can our today's story. So I welcome Honorable Chief Guest, Assistant Professor Manisha Gujar, Madam. Manisha ma'am is currently working with the Government Institute of Forensic Science, Aurangabad. So being a immunist psychologist, I would like to call on a call Sonal for the introduction of today's guest, Manisha Gujar ma'am. Over to you, Sonal, for introduction. Thank you, Kailas. Thank you, Kailas. Our guest is Manisha Suryakant Gujar, and her qualification is MA in Psychology in NET, pursuing PhD from Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Additional qualification her additional qualification is pass the examination of National Language Conversation Ability with First Class 2000, pass the examination of Sanskrit held by Tilak Maharashtra Vidyapeeth with First Class in 2000. Her work experience is appointed through MPSC and currently working as an assistant professor at Government Institute of Forensic Science in Aurangabad since 1st October 2015. Work as clinical counselor at Dr. Quadri's Mental Health Center, Aurangabad in June 2000 to January 2009. Another, her participate and presented She participated and presented research paper in various national and international conferences. She published a research paper in reputed national and international journal, invited as a guest speaker on various platforms, worked as a community member in state level workshop of forensic science for legal professional WFLP 2020, held on 20th February 2000, organized by Government Institute of Forensic Science in Aurangabad. She appointed as an examiner, a paper setter in the subject of psychology, forensic psychology, and she attained a 42 days foundation training program on 20 February to 2 April 2018 at Yashda, Pune. So, thank you, Kailas.
Okay. Right. Thanks, Chief Guest. It was very inspiring because the person in one field, how he can climb and how he can learning can happen. So this continuously, ma'am, is in that process. It's great, our honor. So rather than not wasting much time, I would like to call Madam for. Good morning. Sir, I'm audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Manisha, Madam, Yes, sir. you can start your lecture. Okay. Sir, please disable screen sharing. Okay. Screen sharing is disabled. Okay. Shinde sir, can you help in this? Yes, yes. Wait. Ma'am, can you now you can share your PPT. Okay, okay. Thank you. So screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, sir. Today's topic for the lecture is role of forensic psychology in criminal justice system. I hope you're quite curious about the psychology and what exactly we do in psychology. So here I'm going to focus on this topic, like what exactly the role of psychology. Forensic psychology is one branch of a psychology, and basically in psychology, we study about the behavior and the cognitive processes. Behavior and cognitive process means like cognitive process comes under like decision making, reasoning, memory, attention, problem solving. It's about all this. And forensic psychology is just one branch of psychology, which is basically the intersection between psychology and law. So we'll see basically what exactly it is. The word forensic basically it is derived from the word forensis, which means forum. That refers to the relationship between the legal system on the one hand and the professional fields such as psychiatry, medicine, pathology, chemistry, anthropology, psychology, etc. on the other. Forensic psychology is the interface between psychology and law. Here, we use psychological principles for the investigation purpose. And it's not only limited for the investigation. Here, we do much more than investigation. So it is application of psychological principles and knowledge to various legal activities ranging from crime against children such as child abuse, child custody disputes, his or her ability and competency to stand trial, to advise relating to sentence, etc. Definition, if we talk about the definition of forensic psychology, the definition is given by APA, that is American Psychological Association. So forensic psychology is the professional practice by psychologists within the areas of clinical psychology. Clinical psychology is one branch of psychology, and counseling psychology, neuropsychology, and school psychology, when they are engaged regularly as experts and represent themselves as such in an activity primarily intended to provide professional psychological expertise to the judicial system. Basically, we know very well, like nowadays the crime rate is increased. The nature of crime is changed, yes, that's true, but still
the percentage is very high. So when we try to find out the reason of the crime or the motive behind the crime, so there is always the mentality of the criminal that plays a very important role over there. So for that purpose, here we deals with the psyche of that person, of that individual, what exactly the reason behind that behavior. Okay. So in forensic psychology, basically what we evaluate, assessment, this language is comfortable for all of you, or should I use the mixed language? Mixed language will be better, madam. Okay, okay, fine. So basically forensic psychology हम लोग क्या evaluate करते हैं, assessment what we do. So it is like competency to stand trial, whether the person is capable enough कि कोर्ट में जो भी कोई तो वो हम लोग मेजर करते हैं, that is called trial competency. Second, criminal responsibility, whether the person is able to understand the output of his behavior. Then impact of mental illness or substance abuse on behavior. We know very well कि like कोई भी हम लोग जब drug inject करते हैं और like alcohol consume करते हैं, so that change our behavior, हमारे physiology change करता है ना. That's why like physical fights occurs कि like friends बैठे और after consumption of drink, I'm talking about alcohol and all, so they start like physical fights. Or aggression, violent behavior is there. So that is the impact of that particular substance. या फिर drug, any type of drug, intake कर लिया, consume कर लिया, so that change your physiology, and obviously when physiology change, so at the same time that reflects in our behavior. Then civil proceedings, it is not only like criminal proceedings में ही psychology का role है, it is even in civil proceedings. Then personal injury, what kinds of emotional distress or the harm that creates to the victim. So that's what even we want to evaluate. Then mental disability and neuropsychological functioning, whether the person is having memory problems. Suppose like person is under trauma of victim. So he is at that time, he is not able to recall each and everything. Recall करना मतलब याद करना है वो चीज, whatever that happened with him, जो भी कुछ incidents था. So that's what we have to work on that. या फिर कोई और neurological problems like dementia. So what are the tools or techniques which we used forensic psychologists? That is first one, which is about clinical interview. In clinical interview, that is the face-to-face communication or the interaction with the client or the patient by psychologist, clinical psychologist. So here, detailed information we want to gather by that person. So that we can get the idea of the reason of his particular behavior. जैसे कि अगर वो क्राइम करता है तो क्राइम का रीजन क्या है, वेदर वहाँ पे कुछ हिस्ट्री है उसका क्रिमिनल बिहेवियर की, या फिर चाइल्डहुड कुछ प्रॉब्लम था, जस्ट लाइक एडीएचडी इज वन काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर है. सो ऐसा कुछ हिस्ट्री है क्या उसमें, सो दैट इज व्हाई ये बिहेवियर में अभी वो उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो करंट सिम्टम्स, we can get that idea about the current symptoms जो भी कुछ उसको problem है, present problem. So we can find out the symptoms म्हणजे लक्षण कुठल्या पण आजाराचे, and problems as perceived by the client and reported verbatim by him. जो person है, patient है, जिसका हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, clinical interview, तो we get that information by that person. Suppose वो person not able to कम्युनिकेट, कुछ डिसऑर्डर्स में ऐसे भी होता है कि वो बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है ड्यू टू दैट सिवियरिटी ऑफ दैट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सीरियस अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो. सो एट दैट टाइम वी हैव टू गेट दैट इंफॉर्मेशन बाय family members or the caretakers or those who are very close towards that person. Then the onset and duration of the problem. Here onset मतलब कब हुआ है वो, and duration कितने टाइम से वो उसको प्रॉब्लम हो रहा है. Then history of any crime committed in childhood, whether there is any kind of history for that, any what we can say,
एंटी सोशल बिहेवियर कभी था क्या, या फिर स्कूल में कंडक्ट डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स है, विद इन दैट इट इज लाइक क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल, या फिर फ्रिक्वेंटली स्कूल बंक करना है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीजन, या फिर घर से भाग जाना है without informing parents, like stay night out and frequent absenteeism in school, or it is about crime committed intentionally or unintentionally, both can be there. So we have to get that information with the help of that clinical interview. Whether there is a genetic or family history or psychiatric problems. Psychiatric problems, when it is the severe psychiatric problem, so there is a relationship. Suppose कई सारे movies में आप लोगों ने देखा होगा, और even it is like severity of that psychotic problems. Two types of psychological problems, mental disorders है, जैसे कि neurotic disorders and psychotic disorders. Psychotic disorders म्हणजे ज्या अतिशय सिरियस आहेत, ज्याच्यासाठी हॉस्पिटलायझेशन रिक्वायर्ड आहे, त्यांना ट्रीटमेंटची गरज आहे, त्यांना ऍडमिट व्हावं लागतं, आणि बरे होण्याचे चान्सेस त्यांचे ऍज कम्पेअर टू न्यूरोटिक प्रॉब्लेम्स कमी असतात. आणि न्यूरोटिक प्रॉब्लेम्स म्हणजे जे माइल्ड टू मॉडरेट लेवलचे असतात, त्यांना हॉस्पिटलाइज करायची गरज नाही पडत, बट स्टील impairment creates in your life due to that neurotic problems, like anxiety problems or phobia, that is called neurotic problems. Psychotic problems, for example, it is like schizophrenia, in which person detached from that reality. कई movies में भी देखा होगा आपने कि like person not relate themselves in reality, in real situation, वो उनके एक अलग world में, अलग दुनिया में रहते हैं. That is about that they are having hallucinations कि like कोई दिखता है, कोई what we can say, किसी का आवाज सुनाई दे रही है, that is called hallucinations. So we have to get that information about that family history or for that psychiatric problems or person's history. फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी क्राइम रिलेटेड बिहेवियर, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कुछ जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? सो हियर वेदर पर्सन इज हैविंग क्रिमिनल बिहेवियर, वो उसका फैमिली हिस्ट्री में ही है क्या, है ना? अगर क्राइम सीरीज हम लोग देखते हैं तो इट इज लाइक समटाइम्स फैमिली में ही इंकरेजमेंट मिल रहा है उसको क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, वायलेंट बिहेवियर के लिए. सो वी हैव टू फाइंड आउट विद इन दिस इन क्लिनिकल इंटरव्यू like whether there is a family history or not. Then alcoholism, drug abuse and addiction and deviant behaviors. Deviant behaviors means जो normal behavior से deviate हो चुका है, ऐसा behavior. See, we all are like living in society. We are human beings called social animal. So while living in society, we have to follow some norms. कुछ नॉर्म्स हमें फॉलो करने होते हैं कि लाइक डज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है. अगर ये बिहेवियर होता है तुम्हारा तो वो एक्सेप्टेड होगा सोसाइटी में, और पर्टिकुलर कुछ बिहेवियर है वो उसको अपोजिशन मिलेगा. सो डेविएंट बिहेवियर मींस द बिहेवियर जो आपका डेविएट हो चुका है नॉर्म्स से. सो वेदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी डेविएंट बिहेवियर और नॉट, और फिर वो पर्सन के लिए है या फिर कोई फैमिली मेंबर का भी ऐसा बिहेवियर है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. Recording in progress. Then this is all about clinical interview. In this we we try to get more and more information by the individual, by the client, by the patient. Then second tools what we used here in forensic assessment, that is mental status examination. शॉर्ट फॉर्म में इसको MSE कहता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट आइडिया अबाउट द मेंटल स्टेटस ऑफ दैट इंडिविजुअल, सो दैट माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल और देयर इज इको. No, ma'am, is quite audible. Okay. So in mental status examination, we study about that mental status of the individual, so that with the help of that we can get that clear idea about the mentality of the person. जैसे कि हम लोग बीमार होते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे, जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है तो वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स लाइक टेम्परेचर है, या फिर ब्रीदिंग को प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर टायर्डनेस है, स्मेल आ रही है नहीं है, ये जैसे क्राइटेरिया है उसका कि सिम्टम्स हम लोग फाइंड आउट करके कंक्लूजन पे आते हैं. जैसे टेस्ट कर लिया
डायग्नोज कर लिया, सो यस कोरोना इज पॉजिटिव और नेगेटिव ये फाइंड आउट हो सकता है. सो सिमिलरली हियर टू गेट दैट आइडिया अबाउट दैट मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन कि उसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है नहीं, या फिर वो लाइक देयर इज एबनॉर्मलिटी, एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इज प्रेजेंट ओवर देयर, या फिर सारी चीजें नॉर्मल हो रही है. आपने सुना भाई एमबीबीएस मूवी देखा होगा है ना, दे यूज दैट टर्म लाइक केमिकल लोचा. सो केमिकल लोचा इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अबाउट हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रोल प्ले करते हैं, केमिकल्स रोल प्ले करते हैं. सो when there is a imbalance between these neurotransmitters, अगर उसका लेवल कम ज्यादा होता है, imbalance होता है, तो that creates problem. फिर हमारा behavior जो है उस पर determine करता है. So that mental status examination में हम लोग उसका mentality सही तरीके से है या वहाँ पे कुछ गड़बड़ है ये find out करते हैं. देखो कई सारे cases में हम लोग देखते हैं कि person is abnormal, psychotic कुछ problems था, that's why he committed that crime. Because वो person को पता ही नहीं है कि जो वो काम कर रहा है, जो उसका बिहेवियर है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है. बिकॉज ही इज वेरी लेस सेंसिटिव, उसको वो आइडिया ऑफ हिज वर्क, व्हाट ही इज कमिटेड दैट क्राइम, कि दैट रिजल्ट्स इन व्हाट, ये उसको सेंस से नहीं हो रहा है, वो परसेप्शन ही नहीं आ रहा है. सो मे बी हिज बिहेवियर रिजल्ट ड्यू टू दैट psychological problems. So here we want to get that idea about the mentality of the person. So for that purpose we have to use mental status exam. So ये find out कैसे करेंगे, जैसे कुछ केस है आपके पुणे में केस हुआ था, if you remember or aware about that, संतोष माने का एक केस हुआ था, याद होगा शायद आपको, few years back. Yes ma'am. हाँ right. So within that he claimed कि वो जो भी कुछ हुआ था हादसा, तो like I was not in a normal condition. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो सारा हो गया. उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था और देन इट्स फाउंड दैट कि ही वाज इन द साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड ऐसे हम लोग कहते हैं टर्म्स में. तो वो एकदम अच्छे से था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं था. सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि पर्सन इज लाइक बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है, बट डिफेंड करने के लिए वो कहता है कि लाइक मेंटली प्रॉब्लम था. या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कुछ केसेस में, लाइक डिवोर्स का केस है, डिवोर्स लेना है तो कोई हस्बैंड या फिर वाइफ क्लेम करता है कि लाइक वो मेंटली इल है. तो मेंटली इल है ऐसे कोई भी कहेगा, क्राइम कर लेगा और बोलेगा कि मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डायग्नोस कैसे करेंगे, लाइक कुछ तो क्राइटेरिया होगा. सो दिस इज द टूल्स विच वी यूज्ड. एक एग्जामिनेशन होता है जिसपे से पता चलता है कि वो फेक है या रियल है. कभी कभी ऐसे है कि सीन क्रिएट किया जाता है कि वो मेंटली इल है, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू व्हाट वी कैन से टू एक्ट लाइक अ एबनॉर्मल. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है उसमें, हर एक व्हाट वी कैन से लाइक सिंपल बिहेवियर में जो रिफ्लेक्ट कर देता है कि वेदर पर्सन इज एक्चुअली नॉर्मल और एबनॉर्मल. व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग लाइक दैट कि एबनॉर्मल जैसा बिहेव करे, तो इट हैपेंस. So mental status examination, what exactly we do? So first we study the appearance of the person. जैसे वो बंदा आके बैठ गया, let's say I'm conducting mental status examination on any suspect. So appearance क्या है, whether he is well dressed or hygienic है. well dressed मतलब like अच्छे से आया है, साफ सुथरा आया है, या फिर आपने कई सारे देखो रोड साइड में हम लोग देखते हैं, several people we can find out on road side like जिनको देख के पता चल जाता है कि they are abnormal, कि लाइक बहुत गंदे कपड़े हैं, फुल ड्रेस भी नहीं है पहना हुआ, वेल ड्रेस्ड वो नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, ऐसे देख के पता चलता है कि महीनों साल हो गया होगा कि वो नहाए नहीं है. सो दिस इज द साइन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर कि वो हाइजीनिक नहीं है, वेल ड्रेस्ड नहीं है, इधर दे आर ओवर ड्रेस्ड या फिर बहुत ही कम कपड़े पहने हैं. सो इट इज अबाउट दैट अपीयरेंस व्हिच that's what we have to study. Then speech मतलब वो when the person is interacting with us, तो उसका speech कैसा है, उसका वॉल्यूम क्या है. जैसे वो बहुत आवाज चढ़ा के बात कर रहा है, वो बहुत लो टोन है कि एक जबरदस्ती कुछ बात कर रहा है, उसका टोन किस तरह से है. Then mood, whether the person is having depressed mood है, उसका sad mood है, या फिर एकदम सातवें आसमान पे है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खुश है. What विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीजन पर्सन अगर सैड है या फिर बहुत खुश है, तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक. रीजन है तो ऑब्वियसली
वो तो फिर कंसिडरेबल रीजन हो गया कि पर्सन सैड है, जैसे कि किसी का डेथ हो गया घर पे, तो यस डेफिनेटली he'll feel sad, depressed for that certain period, time period. But otherwise without any significant reason person is crying और sad है या फिर बिना कोई वजह वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, so that's something problematic. Then affect is like observable emotion. उसका affect किस तरह है, मतलब उसका जो हम लोग इमोशन देख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है उसके बिहेवियर में, दैट इज कॉल्ड affect. तो वो न्यूट्रल है, मतलब बंदा वो न्यूट्रल है कि लाइक कुछ चीजें को रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर यूफोरिक है, बहुत ज्यादा खुश है, या फिर बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है वो सिचुएशन से, मतलब जो भी हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, या फिर बहुत फ्लैट है. देन उसका थॉट प्रोसेस देखो, लाइक आवर बिहेवियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस. हमारे जो दिमाग में होता है वही हमारे बिहेवियर में ट्रांसफर होता है या फिर रिफ्लेक्ट होता है. सो थॉट प्रोसेस, वेदर हिज थॉट प्रोसेस इज लॉजिकल, लॉजिक से लेकर वो उसका थॉट प्रोसेस है, या फिर हम लोग कई बार कहते हैं ना कि whatever we are discussing like ये तो इलॉजिकल है बहुत, तो वो जो बंदा है उसका थॉट प्रोसेस लॉजिकल है या नहीं है. देखो कई सारे क्राइम इसमें जो उनका सोच रहता है, जो उनकी सोच रहती है, दैट इज क्वाइट इलॉजिकल. जैसे कि हम लोग देखते हैं रिलीजन से लेकर जो बवाल मचा हुआ है सोसाइटी में, हम लोग देखते हैं कई सारे कि एक छोटा सा कुछ हो जाता है और फिर उसके ऊपर से कई सारे लाइक aggressive behavior, violent behavior, community में झगड़े हो जाते हैं. That is the nature. और even terrorism का हम लोग देखते हैं, तो that is the thing happened over here due to the faulty thought process. Faulty thought process like illogical कुछ thoughts है, जैसे कि like हमारे रिलीजन के लिए हमने कुछ भी किया तो दैट इज ओके, तो दैट इज नॉट ओके एट ऑल. कि लाइक वायलेंट बिहेवियर कोई भी रिलीजन एग्री नहीं करता है, सो वहां पर इलॉजिकल उनका थॉट प्रोसेस होता है. So we have to find out what kinds of thought process within which is in that individual. So thought process logical है, circumstantial है, flight of ideas, या फिर वो बात करते वक्त इतने ज्यादा आइडियाज है एक साथ, वो इतना ज्यादा बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज. और थॉट ब्लॉकिंग, या फिर जो हम कहते हैं थॉट ब्लॉकिंग, इट्स लाइक कि कहीं सूचना नहीं है, जैसे कि लाइक ब्लॉकेजेस ऑफ थॉट, कि वो उसको एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में लाइक थॉट प्रोसेस का जा रहा है, वो पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट इट. देन थॉट कंटेंट, उसके थॉट का कंटेंट क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज थॉट. तो वेदर इट इज सुसाइडल, जो डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनका सुसाइडल टेंडेंसी होता है, हाँ, तो उसके थॉट प्रोसेस में सुसाइड वाला कंटेंट होता है कि लाइक जैसे वो बात करते वक्त वो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि लाइक मैं मर जाऊंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीने से अच्छा है मरना, लाइक दैट. इस तरह का उनका कमेंट होता है, रिप्लाई होता है. सो दैट इंडिकेट कि देयर इज अ थॉट प्रोसेस व्हिच इज सुसाइडल. होमिसाइडल या फिर पैरानोया. पैरानोया इज अ साइकेट्रिक टर्म अगेन. दिस इज लाइक सस्पिशियस नेचर. पैरानोइड डिसऑर्डर है एक साइकोटिक डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड पैरानोइड. कि हमेशा वो शक रहता है उसके दिमाग में कि लाइक दो चार लोग उसके सामने साइड में बात कर रहे हैं तो ही मे फील लाइक कि वो मेरी बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज अबाउट दैट पैरानोइड टेंडेंसी. पैरानोइड और पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक डिसऑर्डर है, वन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसमें ये होता है. सो थॉट कंटेंट उनका हमेशा पैरानोइड रहेगा. देन delusional like there are several types of delusions, like delusions of grandiosity. कभी कभी उनके thought process में ऐसा होता है कि like I can do anything, I'm great, I have supernatural powers, ऐसे भी कभी होता है. So due to that they are behaving violently, they are behaving aggressively, और insanity जैसे उनका behavior रहेगा. या फिर ऑब्सेशंस है, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, दैट्स कम्स अंडर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें होता है कि पर्सन ऑब्सेस्ड है कुछ करने के लिए. और कंपल्शन मींस वो किए बिना वो रह नहीं सकता है, रेस्टलेस फील करेगा जब तक वो चीज करता नहीं है तब तक. दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस. देन इट इज अबाउट परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस. परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस मींस परसेप्शन जो होता है वो वहां पर इम्पेयरमेंट है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है. हॅल्युसिनेशन्स ज्याला आपण भ्रम विभ्रम ज्याला म्हणतात, मराठी भाषेत आपण भास होणं असं म्हणतो. सो हॅल्युसिनेशन्स इज समथिंग लाइक वहां पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई चीज नहीं है, बट स्टिल पर्सन इज परसिविंग दैट.
जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बट स्टिल पर्सन इज क्लेमिंग दैट कि हाँ वो मुझे दिख रहा है, दिख रही है, या फिर जो उसकी आवाज आ रही है. हाँ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ hallucinations: ऑडिटरी, विजुअल, olfactory, tactile. सो जैसे कि olfactory तो सेंसेस, हम जो भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उसके थ्रू जहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रहा है कि लाइक कुछ भी नहीं है सामने बट उसको दिखाई दे रहा है, देयर इज नथिंग, लाइक कोई वॉइस नहीं है बट स्टिल पर्सन इज परसीविंग, तो दैट इज कॉल्ड हैलुसिनेशंस, जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स का साइन है, सिम्टम है. हैलुसिनेशन में पर्सन रियलिटी से छोड़ के उसका बिहेवियर रहता है. Then cognitive means the level of alert and orientation. जैसे कि all of you are now alert, conscious level पे हो आप सभी, like either you are like attending this class, attending this lecture, or you are engaged in somewhere else, but that is your level of alertness. Suppose अभी किसी का नाम ले लिया, particularly like let's say नेहा, हाँ, तो if Neha is there or attending this class, तो वो alert हो जाएगी. So that is about that level of alertness and orientation, whether your behavior is oriented with that reality or not. Then another thing which we examine here, that is insight. Insight means level of illness. जैसे कि पर्सन को कभी कभी इंसाइट ही नहीं होता है उसके इलनेस का. ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, कि पर्सन को वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, और एक्सेप्टेंस के पहले तो उसको वो अवेयरनेस ही नहीं कि आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो वो उसका लेवल ऑफ इलनेस कि उसको इंसाइट है या नहीं है. इंसाइट मतलब उसको वो एक्झॅक्टली वो आयडिया है या नाही आहे. मराठीमध्ये ज्याला आपण दृष्टी म्हणतो, दॅट इज अबाउट इनसाइट. कि वो हाँ मुझे प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, ये उसको पता है या नहीं है, वो उसके लिए ओरिएंटेड है या नहीं, दैट इज अबाउट इनसाइट. और इनसाइट लेवल ऑफ इलनेस एंड नीड फॉर ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन, कि मुझे ये प्रॉब्लम है. जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में आज भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है तो उसको छुपाया जाता है. पीपल आर लाइक not ready to go to the psychiatrist and get the treatment. आज भी बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा है, उसके चलते लोगों में फियर फैक्टर है कि एंड दैट्स व्हाई जब वो सीवियर हो जाता है फिर प्रॉब्लम, एट दैट टाइम दे जस्ट कंसल्ट टू द साइकियाट्रिस्ट, जब फिर वो टाइम बहुत डिले हो गया है. So whether the person is having insight or not, we have to get that idea. Then judgment or impulse control. Impulse control means basically the control on our feelings, emotions or behavior. That is called impulse control. तो यहाँ पे देखो that is really very important in our life कि जो बंदे में को हमारा उसका impulse control है, फिर वो anger control कर सकता है, उसके emotions control कर सकता है. Day to day life में impulse control is really very important. तो यहाँ पर क्राइम किस वजह से ज्यादा होते हैं, या फिर जिनका एंगर, दोज हु आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, देखो उनका बिहेवियर अलग वे से होता है एज कम्पेयर टू द पर्सन दोज हु आर वेरी काम. एग्रेसिव बिहेवियर होना है, एग्रेसिव बिहेवियर अगेन इज व्हाट, दैट इज द साइन ऑफ लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल. रेकलेस ड्राइविंग करना है, या फिर हार्श बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल और इवन ह्यूमन बींग्स, तो ये क्या हो गया, दैट इज द साइन ऑफ लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल. और फिर उनको बाद में लगता है कि अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना था, या फिर लाइक मुझे ये नहीं कहना था, मुझे ऐसे करना नहीं था, बट स्टिल दैट हैपेंड बाय मी. सो दैट इज द साइन ऑफ इम्पल्स कंट्रोल. So how well he can judge and how much he is able to control his impulse, that is called impulse control. So it's all about that mental status examination जो हमें study करना पड़ता है कि like when the person is showing any sign of abnormality, या फिर हमें पता चलता है कि like emotional distress it is there. तो जब ऐसे कोई केस सामने आता है और ऐसे कुछ साइन दिखाई देते हैं कि जिसमें से पता चलता है कि लाइक मेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट इंडिविजुअल, तब उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, लाइक कोर्ट इज आस्क्ड अबाउट दिस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और दैट टू गेट दैट आइडिया अबाउट दैट मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, और फिर उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है. व्हेन वी फाउंड दैट कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में वो पर्सन लाइक हैविंग सम प्रॉब्लम, सम सीवियर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, या फिर अगर वो विक्टिम है, समथिंग रॉन्ग दैट हैपेंड विथ हिम, जैसे कि लाइक सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, रेप का केस है, तो दैट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट इंडिविजुअल, फॉर दैट फीमेल. तो
ऐसे कुछ सिचुएशन में हमें एक अलग ट्रीटमेंट उसको देना पड़ता है. सो वी हैव टू रेफर दैट केस टू द साइकियाट्रिस्ट और फॉर द रिहैबिलिटेशन. Then there is a role of intelligence test. आपको I just go through with your syllabus and I found over there कि like psychological testing एक था. So psychological testing में there is a important role of intelligence test, personality test, and some clinical test what we use. Now, or when we talked about intelligence test, so why we used? It is like sometimes person is like use his high level of intelligence with the help of high level of intelligence वो बहुत precisely plan करता है. एक research study था regarding this like level of intelligence or that percentage of crime. So within that it's found terrorism पर किया हुआ था कि like those who are terrorists they are highly intellectual. Or with the help of that high level of intelligence they are just committing this type of crime, terrorist attack करना है. So the crime that was committed by the person concerned was and उनका वो crime होता है. Then could he have committed the crime clearly planning? So precisely plan करके when they are committing that crime, so that is what they can do with the help of their intelligence. So इंटेलिजेंस टेस्ट का रोल यही है कि हमें वो देखना है क्राइम में जैसे कोई केस आ जाता है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हमें फाइंड आउट करना होता है सो दैट वी कैन गेट दैट आइडिया कि हाँ ये बंदा है जिसने ये बंदा वो क्राइम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज इंटेलिजेंस. या फिर वो बंदा एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, बिलो एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उसको पता ही नहीं था. जैसे कई केसेस में ऐसा होता है कि उसने कुछ जैसे हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट के ऐसे टेररिस्ट अटैक के केसेस में देखते हैं है ना, उसको सिर्फ बताया जाता है कि ये बैग वहां पे रखना है या फिर लाइक ट्रांसपोर्ट करना है, बट वो पर्सन अवेयर नहीं है कि उसका आउटपुट क्या होने वाला है वो बिहेवियर का. ही इज टोटली अननोन. और वो सारा प्लान करना सिस्टमैटिक वो उसका उतना कॉम्पिटेंट नहीं है. तो ये हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर ही इज दैट मच इंटेलिजेंट और नॉट विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. तो सेवरल टेस्ट वहां पर है इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए जिसको हम लोग नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में आईक्यू टेस्टिंग कहते हैं कि पर्सन का आईक्यू मेजर करना है. आप लोगों ने शायद किया होगा आपको. So intelligence test, Bhatia's test of battery of intelligence, Wechsler adult intelligence test, standard progressive matrices intelligence, ये कई सारे famous world wide use होने वाले टेस्ट है जिसके थ्रू हम लोग इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं. Then personality test. Personality is not only like how you look. बंदा बहुत हाइटेड है, फेयर, टॉल और लाइक अट्रैक्टिव काइंड्स ऑफ उसका अपीयरेंस है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. इट इज नॉट लिमिटेड विद दैट. यस वो तो है फिजिकल अपीयरेंस बट इट्स मच मोर देन दैट. योर फिजिकल अपीयरेंस से भी कई ज्यादा पर्सनालिटी में इन्वॉल्व होता है. जस्ट लाइक द कम्युनिकेशन, द वे टू इंटरेक्ट विद पीपल और इट इज अबाउट दैट इंटेलिजेंट, द थॉट प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन, that competency. तो ये सारा combination होता है that is about that comes under personality. So personality test में basically हम लोग देखते हैं कुछ traits. Traits मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग उसको गुणवैशिष्ट्य ज्याला आपण मराठीत म्हणू की असे काहीतरी गुणवैशिष्ट्य असतात की ज्याच्यामुळे तो पर्सन क्राईम करण्यासाठी म्हणजे क्राईम मध्ये इन्व्हॉल्व झालेला आहे. So personality test attempt to measure person's way of dealing with different aspects and experience of his or her life. तो ये टेस्ट बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट ट्रेट्स मेजर करता है जैसे कि एक्सट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्जन मतलब बहुत ज्यादा सोशल है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, फन लविंग है, जिसका बहुत ज्यादा लाइक फ्रेंड सर्कल है. That is the characteristics of extroversion personality. Introversion personality उसके ऑपोजिट है. इंट्रोवर्जन में लाइक पर्सन इज लाइक साइलेंट है, ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड है, वो ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करेगा, वो अपना अकेला रहेगा या फिर 2-4 लोगों के साथ ही रहना वो पसंद करेगा, मतलब भीड़ पसंद नहीं रहेगी. दे आर क्वाइट काम.
silent. Or neuroticism, it is like they are always in tension. हर एक चीज का उनको टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है. जैसे कि बोला कि कल नेक्स्ट वीक तुम्हारा स्टडी क्लास टेस्ट होने वाला है, तो वो आज से इतने ज्यादा टेंशन लेकर बैठ जाएंगे. सो दैट इज द साइन ऑफ न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म प्रॉब्लमेटिक एसिड नहीं है, बट अगर वो हाई लेवल पर होता है तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. मतलब उनका टेंशन लेने का देख के किसी और को टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज लाइक दैट. सो देयर आर सेवरल पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसके थ्रू हमें मेजर करना है कि वो पर्सन को ऐसे कुछ ट्रेट्स है जिसकी वजह से वो वायलेंट बिहेव कर रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, क्रिमिनल टेंडेंसी वहां पर हो रही है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट ट्रेट्स. One test over there again, it is about that MMPI test, जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है. और इफ यू टॉक्ट अबाउट दैट फोरेंसिक यूज उसका क्या है, तो दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू मैनेजमेंट डिसीजन इन क्रिमिनल जस्टिस एंड करेक्शनल सेटिंग्स. MMPI में हम लोग उसका डिसऑर्डर भी मेजर करते हैं विद अलोंग विद दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स. Then there are some projective techniques. Projective techniques आपने शायद सुना होगा कि हमारे there are the parts of minds, subconscious mind, unconscious mind and conscious mind. जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हो तो that is the conscious mind. Unconscious mind means जो हमारे mind में चल रहा है कि we people are not aware about it. और subconscious mind means that is the middle part, कि totally हम लोग conscious भी नहीं है और unconscious भी नहीं है. तो हमारे unconscious mind में क्या चलता है उसके अगर वहाँ पर suppressed feelings है, emotions है, so that creates a big problems. तो अनकॉन्शियस माइंड का स्टडी करने के लिए भी कुछ टेस्ट है. जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सन इजीली कैन लाई, या फिर वो रिस्पॉन्स देगा. कुछ हम लोग पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं तो उसमें फेक रिस्पॉन्स दे देगा. बट यहाँ पर रोशा या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है. वहां पे वो पर्सन को आइडिया नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या मेजर हो रहा है, तो वो फेक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है. So Rorschach-King-Block test is one kind of a projective techniques. Okay, we don't have that much time, so that I cannot explain all the projective techniques. I just mentioned here briefly. Okay. Then again, TAT is the another test which we can use. This is useful to unravel the intrapsychic conflicts and to understand the needs of the individual. हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर फ्लक्चुएट होता है, वैल्यू होता है, डेविएट हो सकता है. तो वो स्टडी करने के लिए भी कुछ टेस्ट है जहाँ पे पिक्चर्स होते हैं, कुछ इमेजेस है और पर्सन को उसके बारे में बताना है और स्टोरी लिखना है, एक शॉर्ट स्टोरी, और फिर वो स्टोरी का इंटरप्रिटेशन किया जाता है. दिस टेस्ट आर इवन यूजफुल फॉर दैट, ये पुलिस सेक्टर्स में भी, मिलिट्री एरियाज में भी ये टेस्ट यूज होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री में, कि उनका साइकोलॉजी टेस्ट करना है. Then there is another test, house tree person test, that is HTP. With the help of this हम उस person का mental state examine कर सकते हैं, conflicts उसके साथ, उसके लोगों के साथ क्या है वो find out कर सकते हैं, उसका attitude देख सकते हैं कि towards the society, towards the environment. देखो कोई particular religion है, उनका अगर ऐसा perception है कि हमारे साथ injustice हुआ है, तो obviously वो अलग religion के साथ फिर violently behave करेंगे कि लाइक हमारे रिलीजन के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई. अगर ये उनके दिमाग में है तो ये क्या हो गया, उनका एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सोसाइटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर रिलीजन फॉर देयर लाइफ. तो वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है. और हम लोग देखते हैं इंडिया में कई सारे टेररिस्ट अटॅक हुए या फिर दंगल होतात बऱ्याचदा आपल्याकडे खूप जास्त प्रमाणात हे सगळं. तर याच्या पाठीमागे जर का आपण टेंडन्सी काय ती बघितली तर ते परसेप्शन है, फॉल्टी परसेप्शन आणि एटीट्यूड, ये सारे चीजों को देखने के लिए. एटीट्यूड मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना उसको बहुत एटीट्यूड है, नो, इट इज हियर समथिंग डिफरेंट. परसेप्शन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो चीज को देखने का, इट इज अबाउट दैट वन. सो दिस टेस्ट इज अगेन वेरी यूजफुल टू अप्लाई टू चिल्ड्रन. बच्चों का अगर हमें करना है, सपोज विटनेस है चाइल्ड या फिर विक्टिम है, तो उनसे इंफॉर्मेशन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक कम्युनिकेट करना. तो एट दैट टाइम ये टेस्ट वहां पर बहुत यूजफुल होता है. यहाँ पे वो टेस्ट में उनको सिर्फ इतना होता है कि लाइक एक इमेज निकालना है, एक ड्रॉ करना है उनको, हाउस, ट्री और पर्सन, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है जो मैनुअल वाइज क्राइटेरिया दिया है. ऑन दैट बेसिस वी हैव टू इंटरप्रेट. Then forensic behavioral analysis. Forensic behavioral analysis is such that it appears if one is using behavioral filter
to understand the crime and the criminal. तो उसका हम लोग वर्बल कंटेंट क्या है, उसके बिहेवियर का एनालिसिस क्या है, द एनालिसिस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, वेदर ही इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ दैट बिहेवियर, like whether he's engaged in like sexual assault का कुछ अगर हिस्ट्री है वहां पर, forcefully उसका like sexual harassment में involved है, like that we have to get that information about it. तो forensic behavior analysis के through हम लोग वो information लेते हैं. The goal of behavior analysis is to obtain maximum understanding of the crime that has been committed from all angles so that justice could be obtained and the real criminal is apprehended. If we talked about areas of criminal forensic assessment, तो हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं criminal proceedings में. तो competency to stand trial, हम लोग पहले तो ये पता करते हैं कि whether the person is capable enough कि trial, when the trial is going on, तो वो सारा समझने की उसमें क्षमता है या नहीं है. जैसे कि कोर्ट में जो भी कुछ चल रहा है, जैसे कि उसके अगेंस्ट कुछ चार्ज फाइल हो रहा है या फिर सेंटेंसिंग हो रहा है, कितना उसका पनिशमेंट हो रहा है, तो ये सारा समझ सकता है वो या नहीं. कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि पर्सन को वो प्रोसीजर ही समझ में नहीं आता है, वो प्रोटोकॉल्स कोर्ट में जो भी फॉलो करने होते हैं वो ही उसको समझ में नहीं आता है. तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट. तो हमें वो देखना पड़ता है कि वेदर दैट कैपेबल इनफ टू स्टैंड फॉर द ट्रायल, कि कॉम्पिटेंसी है या नहीं. उसको अगर वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू स्टैंड फॉर द ट्रायल. और अगर ऐसी जब सिचुएशन होता है तो हम वी हैव टू गेट दैट आइडिया कि पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट, फिर वहां पर वो पोस्टपोन किया जाता है ट्रायल, या फिर जब तक वो बंदा रिकवर नहीं होता है तब तक वो तब तक वो होल्ड पर रखा जाता है. Then competency to confess, then assessment of risk or dangerousness, कि वो बंदा जैसे कि प्रिजन में है तो अगर उसका सेंटेंसिंग खत्म होने आया है, वो बाहर जाकर और फिर क्रिमिनल एक्ट में एंगेज रहेगा, वायलेंट बिहेवियर में रहेगा या नहीं, वो भी हमें पहले असेस करना होता है. सो दैट इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क और डेंजरसनेस. नहीं तो फिर वो जैसे कि अभी प्रिजन से बाहर निकलने दो, व्हाट आई विल डू, वो वहां पे बैठ के प्लान कर रहा है कि बाहर जाके किसका मर्डर करना है. तो हियर वी हैव टू गेट दैट आइडिया कि रिस्क फैक्टर कितना है वो पर्सन के लिए भी और वो सोसाइटी के लिए भी. सो दैट इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क और डेंजरसनेस. ये भी हम लोग फोरेंसिक असेसमेंट में करते हैं. देन इवैल्यूएशन ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी. आई विटनेस टेस्टिमनी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लाइक एक तो वो केस को अलग डायरेक्शन में लिया जा सकता है. वो पर्सन अगर गलत कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो वी कैन नॉट गिव अ जस्टिस टू दैट इंडिविजुअल. तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आई विटनेस. तो आई विटनेस का भी इवैल्यूएशन हम लोग वहाँ पे करते हैं कि लाइक कितना ट्रस्ट हम लोग कर सकते हैं कि या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो वहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं उसके मेमोरी पर. और टू गेट मोर इंफॉर्मेशन बाय दैट आई विटनेस क्लियरली हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर द आई विटनेस. Then psychotherapeutic and counseling service which we can provide to the victim of crime. जैसे कि कभी-कभी उनका नॉर्मल लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है, what's happened with them due to that. तो हमें वहां पर साइकोथेरेपीज यूज करने पड़ते हैं. काउंसलिंग सर्विस दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड. स्पेशली रेप केस अगर है, सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, तो उनका मेंटालिटी बहुत डिस्टर्ब हो गया होता है. तो हियर वी हैव टू यूज सम साइकोथेरेपी. जैसे कुछ डिप्रेशन में चला गया होगा पर्सन, तो डिफरेंट साइकोथेरेपीज व्हिच वी हैव टू यूज ऑन देम, और काउंसलिंग हम लोग उनको प्रोवाइड किया जाता है. रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी इवन वी कैन प्रोवाइड टू देम सो दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ अगेन. देन इंसैनिटी असेसमेंट. इंसैनिटी असेसमेंट जैसे अभी मैंने वो केस का माने केस का बोला था कि वो पर्सन ऐसे ही कोई बोलेगा कि इंसैनिटी में वो हो गया है क्राइम, तो हियर देयर इज अ नीड टू असेस कि वो सच में पागल है या फिर मतलब साइकोटिक कुछ प्रॉब्लम है उसको, या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है. तो दैट्स व्हाट वी डू इन फोरेंसिक असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड इंसैनिटी असेसमेंट. देन सेंटेंसिंग इवैल्यूएशन. कभी-कभी पर्सन जो होता है कि ही इज हैविंग मेंटल रिटार्डेशन और below average level of intelligence और it is like साइकोटिक प्रॉब्लम है, उसके चलते उसने कुछ क्राइम कर दिया है, तो वहां पर उसका सेंटेंसिंग उस पर डिपेंड करेगा. अगर प्रॉब्लम है उस वो बंदे को, वो अवेयर ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या हो सकता है. तो वहां पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको सेंटेंसिंग टू सेंड देम इंस्टेड ऑफ प्रिजन, वहां पर उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में या फिर व्हाट वी कैन से साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट दिलाया जाता है वहां पर, क्योंकि दे आर हैविंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स.
तो सेंटेंसिंग पर ये भी देखना होता है, एज देखना होता है, जेंडर और लाइक साइकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द डिसीजेस ऑफ द मेंटल इलनेस. देन पर्सनल इंजरी इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल कितना हार्म वहां पर क्रिएट हुआ है, इंपेयरमेंट कितना हुआ है, दैट्स व्हाट वी हैव टू असेस इन पर्सनल इंजरी इवैल्यूएशन. दिस इज अबाउट कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल. जैसे मैंने अभी बोला कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, सो इट इज अबाउट दैट वन. This refers to the inability of the accused or the defendant to participate in the proceedings of the court due to some mental disorder or mental retardation or even physical illness. So what we do over here, so understand all the charges that have been leveled against him. वो ये समझ सकता है नहीं, या फिर to convey to his lawyer all aspects of the case. जैसे कि वो डिफेंस में क्राइम हुआ है उसके साथ खुद के डिफेंस के लिए, तो उसके लिए अलग वे से वो व्हाट यू कैन से प्रोसीजर होगा ना कि लाइक डिफेंस में उसने मारा है, तो वेदर द पर्सन वो सारा समझा सकता है क्या व्हेन ही स्टैंड इन कोर्ट, तो ये सारा समझाने की उसमें एबिलिटी है या नहीं है. सो दैट इज अबाउट कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल. Understand the nature and severity of the punishment for the crime and he has committed. So it's about that competency. Then personal injury evaluation में what exactly we do, यहाँ पर nature of the harm कि वो crime का वो victim पर कितना ज़्यादा harm create हुआ है, distress to the accused has caused to the victim. वहाँ पे हम लोग seriousness देखते हैं वो harm का कितना ज़्यादा serious वो है कि person अगर आगे चल के normal life जी ही नहीं सकता है due to that what he faced, that unfortunately whatever that happened with him or her, and the nature of harm वो exactly क्या हुआ है, like physical harm है या फिर psychological harm है. जैसे कि बंदा अभी normal उसका job functioning जो है daily functioning है वो भी नहीं कर सकता है, तो और कितने हद तक कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो वहां पर कहते हैं कि नुकसान भरपाई, हाँ आपने सुना होगा ये कि हमारा इतना लॉस हुआ है, वो मेंटली या फिर उसके हेल्थ पर इतना इफेक्ट हुआ है, तो वहां पर ये देखा जाता है कि सच में वो उतना हुआ है या पर्सन सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, तो वहां पे वो असेसमेंट किया जाता है. हर बार वो झूठ ही होता है ऐसे नहीं है, बट कई बार वो भी देखना होता है कि पर्सन जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक दैट, वो दिखावा कर रहा है कि ये इंजरी हुआ है, या फिर इट इज जस्ट दैट रियलिटी कि बहुत ज्यादा हार्मफुल वो इम्पैक्ट वहां पर हुआ है विक्टिम पर. तो उसका सीरियसनेस कितना है, नेचर क्या है वो हार्म का, नेचर म्हणजे त्याचं स्वरूप काय त्या इंजुरीचं, और कितना ज्यादा मेजर इम्पेयरमेंट्स हुआ है, मतलब उसका डेली फंक्शनिंग किती बिघडलंय त्याचं. तर ये हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इन पर्सनल इंजरी इवैल्यूएशंस. Then criminal profiling. Criminal profiling, is it about that profiling is an investigative technique and is referred to as offender profiling or criminal profiling. यहाँ पे हम लोग criminal का fully assessment करते हैं, उसका psychologically assessment हम लोग करते हैं, analysis करते हैं उसके behavior का. Here we try to get the idea about that motive of his crime, his behavior, और even future में वो इस तरह का behavior में कितना involved हो सकता है, prediction even we can do in criminal profiling, which helps for the investigation purpose. So psychological investigation tools what we used in criminal profiling, जिसमें MSE, that is mental status examination, then psychological testing, whatever we talked about, intelligence test है, personality test है, neurocognitive some tests are there. Then polygraphy testing, lie detector आपको पता होगा, lie detector polygraphy lie detection के लिए जो यूज होता है. Then narco analysis, forensic hypnosis even, and it is about BOS, brain electrical oscillation signature profiling, जिसमें वो पता करता है कि लाइक वो पर्सन जो बता रहा है जो इंफॉर्मेशन, या फिर वो पर्सन खुद इन्वॉल्व था वो क्राइम में या फिर नहीं, ये सारा हम लोग मतलब ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में that's what we used. तो ये tools और techniques है. It is really very difficult to explain each and every tools because it takes too much time. So here just I will try to give you a brief idea about these tools or techniques. That's what we used or what exactly we do in criminal profiling. So here it's time over now. So I'll stop here. Thank you all of you
Thank you, coordinator or the principal of this college, for giving me such an opportunity to express myself, to keep my views for in front of your students regarding forensic psychology. Okay, ma'am, that's great interaction you already done with us, and the session is too informative. Our parents are like busy to writing the new things which you are bring to us, as we are the law student, and it was very it was very learning for us, because the way you are explaining in a different angle, like personality trait you're talking about the various types of criminals, how you identified out. You also given a real life examples like Pune's example that we are relating that with the Mane case. But somehow even also our students is having some questions. We'll take a questions, but I want to Yes, yes. ask one question to you. So that is like nowadays, like white collar criminals are increased. So what is your Yes. insight on that? Here, basically the nature of crime is changed, which already I have mentioned. कि like पहले के ज़माने में crime और criminal crime करने का तरीका बहुत अलग था. आजकल white collar crime और even cyber crimes का rate बहुत ज़्यादा increased हुआ है. तो white collar crimes जो आपने बोला, तो here we people are very techno savvy nowadays. So we are using that different kinds of techniques for the crime और इतने सारे what we can say details information we have और misuse हर एक चीज का बहुत ज्यादा होने लगा है. Like those people are who are highly intelligent या फिर उनका एक उल्टा दिमाग चलता है. देखो जैसे कि अभी इंटेलिजेंस का भी रिलेशन होता है कि highly intellectual people, research findings are suggesting that कि terrorist attack में those who are involved, like study हुआ था कि like they people are highly intellectual, mostly they are like what we can say software engineer they are. So कहीं इंटेलिजेंस का मिसयूज हो रहा है. एक प्रॉपर चैनल प्रॉपर डिटेक्शन में अगर वो यूज होता है तो ऑब्वियसली एक्सपोजर मिलता है वो इंटेलिजेंस को, तो वो उल्टा दिमाग नहीं काम करेगा. फिर वो कहीं ना कहीं एक फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट सोसाइटी वी यूज दैट इंटेलिजेंस. तो और अगेन दैट इज द रीजन फॉर दिस, लाइक ये होने के लिए कि इथिक्स और मॉरल नाम की चीज जो है वो बहुत कम होते जा रही है. कि लाइक जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, लाइक रूल्स रेगुलेशन डज डोंट्स, जो फैमिली में संस्कार मॉरल वैल्यूज जो हम लोग कहते हैं, तो लेस इंपॉर्टेंस पीपल आर गिविंग टू गेट दैट इजीली टू गेट द मनी, रिच बनना है जल्दी से, हाई एक्सपेक्टेशंस. सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स बेसिकली. लाइक कहीं ना कहीं बहुत लॉस हो रहा है मॉरल इथिक्स वैल्यूज का, और इवन लाइक हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अवरसेल्व्स, फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स इवन. So it's the combination of all. So people more used to get the money by this way rather than to get efforts or some legal ways, to use some legal ways. So Okay. Okay, ma'am. We have one question from student side. So what is the long form of MMPI? that is Minnesota Multiphasic Personality Inventory, जो वाइडली क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज होता है. फोरेंसिक इसमें हम लोग ये यूज करते हैं कि लाइक पर्सन के कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं और वेदर पर्सन इज हैविंग एनी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हम लोग उसमें वो टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ उसका पूरा व्हाट वी कैन से मेंटल और फिजियोलॉजिकल हेल्थ हम लोग उस पे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक प्रॉब्लमेटिक है या फिर कौन से एरिया में प्रॉब्लम है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर वो साइकोटिक है या न्यूरोटिक है. ये एक थोड़ा लेंदी टेस्ट है, इन्वेंटरी है ये. यहाँ पर यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. इट टेक्स टू मच टाइम टू सॉल्व दिस टेस्ट, और रिजल्ट्स वी कैन गेट लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं. वो उसकी पर्सनालिटी का स्टडी हम लोग करते हैं बेसिकली MMPI में, और उसका हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ we can study with the help of this test. Okay, ma'am. There is one another case, like you and everyone is like more discussed, like Sunanda Pushkar case. So it is again the forensic has helped us to find out the reasons, because once the suicide has happened, yeah, whatever the incident has happened, so that time everyone is having very different predictions. But only the forensic has how the forensic has a play a role to identify the exact reasons. See,
there is a one technique what we used here, like psychological autopsy होता है, जैसे कि physical examination होता है ना, postmortem जो होता है देखो after death, तो we can find out कि like physiological reason हम लोग पता कर सकते हैं। वैसे भी सुसाइड का अगर केस होता है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी वहां पर किया जाता है टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। फिर वो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन हमें वो पर्सन के बारे में पता कर सकते हैं। ऐसे जो भी कुछ सोर्सेस होते हैं, लाइक उसका कुछ डायरी है, उसका मोबाइल है, the people those who are very close towards him or her, उनसे इंफॉर्मेशन लेना है। तो इसके थ्रू हम पता कर सकता है पता कर सकते हैं कि what exactly happened with him or her, कि उसने वो सुसाइड कमिट किया है तो उसका रीजन क्या है, whether the person is having any psychological problem। उसमें हम लोग उसका हिस्ट्री देखते हैं, फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि किसके पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, या फिर दिस इज द साइन ऑफ अ मेजर डिप्रेशन कि उसकी वजह से ये हुआ, या फिर प्रेशराइज किया गया है उसको। ये सारा हम लोग ऑटोप्सी में फाइंड आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। So suicidal psychological autopsy is one point over there, which we used, and with the help of that, we can find out what exactly happened. And even with the help of this, we can try to prevent further, like when we get the idea that like these are the reasons, so we can try to overcome, or so that we can reduce the percentage of suicide. Okay, ma'am, we have another question from Kote sir. So the question is, ladies have a different mindset. How do you find it? Different mindset regarding maybe he want to ask if you're dealing with the like ladies criminal, so how it is like different to dealing with them in a normal day-to-day life. I mean, there are two aspects, like one is you can take it on as a yes ma'am. I think your question is like how to deal with female. It is difficult in that way he is asking, or what? Yes, on the same. Okay. So it is again yes. talking about the mindset. Yes. Mindset is different. Yes, you can say like this, but it's not only about that mindset. Basically, जो हम लोग मेल फीमेल जेंडर डिफरेंस जो है, या फिर स्टीरियोटाइप्स वहां पर रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में ये कुछ चीजें होती है कि लाइक वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि फीमेल अगर है तो इस तरह से ही होनी चाहिए, कि लाइक जैसे कि बहुत जोर से बात नहीं करना है, बहुत जोर से हंसना नहीं है, इन दैट वे। या फिर हम लोग एक्सपेक्ट भी ऐसे करते हैं जो सोसाइटी ने उसको एग्री किया है। तो फीमेल, while dealing with the female, it's difficult as you are saying. तो it is like ऐसे होता है कभी कभी कि like you are unable to find out the exact emotions or feelings of her, so that it's quite difficult. Or for the female, they like to, या फिर they are expecting कि ये पहचाना जाए, to identify करना चाहिए सामने से। तो ये नहीं हो पाता है, so that's why it's quite problematic for the people of male to deal properly with female. तो कई बार ये भी होता है, और I mean और बहुत सारे reasons है इसके, जैसे कि like high expectations है, या फिर emotional intelligence का। हाँ, one factor is really very important over here, कि like role of emotional intelligence or emotional intelligence, both are different. Emotional intelligence में like it is the ability to understand others' emotions, own emotions, the handle that emotions carefully, or manage our own emotions and others' emotions precisely, to recognize your own emotions even. तो ये फैक्टर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल में वो ज्यादा होता है, तो उनको लोगों से डील करना थोड़ा अच्छा आता है एज कम्पेयर टू मेल, और ये वो मेल में कम होता है। रिसर्च फाइंडिंग्स आर सजेस्टिंग लाइक दैट। तो ये भी एक शायद प्रॉब्लम हो सकता है इसकी वजह से। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मेल टू गेट दैट आइडिया अबाउट दैट मेंटालिटी ऑफ द फीमेल। Okay. I hope he ma'am, got his answer. Ma'am, I want to ask one question, because this is with now for us, because now we are living in new normal, like in this pandemic also. So how we should keep our health and mind will be in such way, because we are seeing a day-to-day different situation at home, at society also. So what will be your mantra? So what should we take care for our mental health
will be in good good in in this situation? Okay, good question actually. Or I even wanted to talk about it lastly. I even plan to say about it because it's quite difficult since from last year we are just facing this situation. This is quite problematic for each and everyone. फिर वो बच्चा है छोटा, टीनेजर है, एडोलेसेंट है, अडल्ट है, ओल्ड एज है, हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. तो यहाँ पर जैसे हम लोग फिजियोलॉजी के हमारा केयर करते हैं तो उतना ही इम्पैक्ट मोर देन दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर फॉर आवर मेंटालिटी, फॉर आवर मेंटल हेल्थ. दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग. ये सारे जो बवाल मचा है लाइक कोरोना पेंडेमिक, डेथ रेट हम लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, वो बम्बार्डिंग होते जा रहा है कि इतने पेशेंट है, आज इतने पेशेंट आए. आई गेस पुणे में तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, राइट? तो ये फ्रीक्वेंटली इफ वी आर एक्सपोजिंग अवरसेल्व्स फॉर दिस सच टाइप ऑफ न्यूज, तो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है. और कंटिन्यूसली अगर हमको उसमें ही अगर है लाइक न्यूज में हम लोग वही देख रहे हैं, नेट पे अभी हम लोग वही देखते हैं, नेट पे भी सर्च करते वक्त देखते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, ट्विटर पे आता है कि लाइक आज इतना डेथ रेट हुआ. तो ये कहीं ना कहीं हमें भी अगर लेट्स से कि लाइक कोरोना का नहीं है बट जस्ट माइल्ड फीवर भी आ जाता है तो वी मे फील लाइक कि लाइक कोरोना तो नहीं हुआ, तो स्ट्रेस में आ जाता है, वो हाई लेवल इंक्रीज होता है. कई सारे केसेस तो ऐसे हुए हैं कि लाइक दे आर क्वाइट नॉर्मल इनफ बट स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ तो निगेटिव इम्पैक्ट हुआ उनके हेल्थ पर, जो कि दे आर फिजिकली वेरी फिट एंड फाइन बट अचानक फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया. यू नो कि साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों एक साथ चलते हैं हमारा. लाइक मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहता है ना. बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है फिजिकल इवन उसका रीजन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है. तो स्ट्रेस हमारा अगर कैसे हम लोग कर सकते हैं, सो इफ वी कीप अवर सेल्फ बिजी इन अवर हॉबीज, positive thinking, assertiveness even, or meditation, yoga, exercise if we do, so that's really that will be a great help for ourselves to keep ourselves mentally fit and fine, and we can be strong in this situation also with the help of There's all one this. question from Rehan, but I think you already answered the questions half. I think so. That is, his question is mainstream media and social media both are impact on a society, mentally disturbed. Some of the journalists say don't watch TV for your mental health. Here is how to help forensic psychology. How to help forensic psychology for that problem, that is the question, right? Yes. Okay. Here basically psychology, फिर वो कोई भी ब्रांच हो, forensic psychology is just one branch of a psychology. यहाँ पे कई सारे ब्रांचेस हैं जो डे टू डे लाइफ में साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है. तो यहाँ पर here we are trying to find out the reason of that problem. हाँ, जैसे कि अभी अगर ये पता चलता है अभी इतने ज्यादा केसेस है कोविड के जहाँ पर बेसिकली या फिर प्रॉब्लम है लोगों को कि रियलिटी ओरिएंटेड बिहेवियर नहीं है, या फिर फोबिया जैसे हो गया है, फियर ऑफ कंटामिनेशन हो गया है, ऑब्सेशन बन गया है लोगों को. तो अभी कि लाइक थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो ऐसे लगने लगता है, बाहर जाके आए तो लाइक कोरोना तो नहीं हुआ, लाइक थ्रोट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सो दे फील लाइक दैट. तो व्हाट ही इज सेइंग कि यस अभी ऐसे भी बोला जा रहा है कि लाइक न्यूज और लाइक सोशल मीडिया पे जो आते हैं पोस्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे व्हाट वी कैन से, तो कंटिन्यूसली अगर एक्सपोज मिलता है वहां पे तो डेफिनेटली दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक देखना ही नहीं है, वी हैव टू बी अवेयर और हमें व्हाट वी कैन से अपडेटेड भी रहना है. बट अगर फ्रिक्वेंटली हम लोग वही सारे देखते हैं, नाउ देखो वी आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन सिंस फ्रॉम द ईयर, तो ऐसे अभी हम लोगों को आइडिया आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रिकॉशंस व्हिच वी हैव टू डू, व्हाट काइंड्स ऑफ केयर वी हैव टू डू फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर फैमिली मेंबर्स. तो अगर वही हम लोग फ्रिक्वेंटली देखते हैं, वही चीजों को निगेटिव, इसको लाइक डेथ हो गया, इसका इतना परसेंटेज हो गया, हमारे सिटी में इतने डेथ रेट हो गया है, आज इतने पेशेंट है, आज इतने मर गए, तो फ्रिक्वेंटली इफ यू एक्सपोज योरसेल्फ फॉर दिस तो डेफिनेटली दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, तो वही दिमाग में चलता है, और व्हाट वी कैरी इन आवर माइंड दैट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स इन आवर बिहेवियर, और उसके चलते फिर हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है. तो यस श्योर, लाइक मीडिया में भी ये निगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव.
तो हमेशा हम लोग अगर वही चीजों को एक्सपोज हो गया तो दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर वो तुम्हारा एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा किसी का, और सुनते हम लोग हमारे रिलेटिव्स का डेथ हो गया है, फिर उनको कोरोना हो गया है, इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए, अभी वो सीरियस है। सो व्हेन वी फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड अवरसेल्फ फॉर सच टाइप ऑफ न्यूज, फिर वो सोशल मीडिया पर है या फिर लाइक थ्रू द कम्युनिकेशन, टीवी, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, हम लोग चाह के भी कभी कभी नहीं रोक सकते खुद को ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लाइक वो आते रहता है। सो instead of focused on all this, let's say we can focus on like इतने cases जो है वो रिकवर हो गया है, या फिर ये बंदे ने क्या किया उसको फिट और फाइन रखने के लिए, या फिर how we can like how I can help to them those who are in problems, जैसे कि social service and all। तो ये अगर हम लोग करते हैं so definitely that is really very very useful for all of us, even for that individual and for the welfare of the society। So forensic psychology यहाँ पर फिर वो problems find out करके like prediction even we can do, or even we can solve this problems। forensic psychology में फिर वो counseling और rehabilitation का part रहता है, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये person को severe problem है तो psychotherapy हम लोग use करके उसका severity कम कर सकते हैं। और rehabilitation है, counseling है, ये पेशेंट को काउंसलिंग किया जाता है। आपको शायद पता होगा कि कोविड सेंटर जो है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंसलर्स वहाँ पर है, तो वो उनको काउंसलिंग किए जा रहे हैं। फिर जो साइकोलॉजिकल है, कई बार ऐसे होता है कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, तो हियर वी ट्राई टू like reduce that intensity of that problem with the help of counseling or psychotherapies। That's what we can do। Okay, that's great interaction, ma'am. It was very wonderful and assertive communication and knowledgeable communication with us. So now I Thanks. would like to take it forward. So I'd like to call, before calling Neha, I would like to submit my apology because due to some internet issues, I'm unable to, I'm connecting and going on, but it is in a part of a new normal. So I would like to give a special thank to our Honorable Principal Sir and my all respected Professor of Law Colleges like Garud Sir, Nilima Madam, Chauhan Madam, Kishore Sir, Shewale Sir, Kale Sir, and Deshmukh Ma'am. So I forget to welcome you on the board. So your presence is always with us, that we also feel at each and every day. But I think that is from my end, it has been, and I'm not able to, due to internet, not able to welcome you. I submit my apology. Now I will take it this session to Neha. Neha will present the vote of thanks for today's session. Over to you, Thank Neha. you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, all of you. I am Neha Vilas Gadve, student of the Sir Senapati Hambir Rao Mohite Law College. Now it is time to convey our gratitude, all of you. First of all, thank you, Assistant Professor Manisha Guzar ma'am. You are sharing very valuable and interesting thought with us in a very simple and easy manner. So at the outset, on the behalf of the college organizing committee, I would like to express my provident gratitude to our principal Shinde sir. You have been constant and support. You have given us a lot of encouragement. Thank you, sir. Now I would like to extend my vote of thanks to IQAC coordinator and head of the Criminal Justice System Department, Professor Garud sir. Our teachers, Patil ma'am, Kale sir, Bhagwat sir, Chauhan ma'am, Chingote ma'am, Deshmukh ma'am, and Shewale sir, who made a beautiful banner today's session. Last but not the least, I thank you all the students for showing their interest in the program. I once again thank you everyone. This session successful. Thank you all of you. And thank you. Thanks a lot for giving me this opportunity. To all the organizing committee members, thank you students for listening this lecture, and I hope you enjoyed. So thank you. Thanks once again. Yes, ma'am. Sure, ma'am. We already enjoy and wish you all the health to each and everyone. So now we conclude this session.